but also on other internal organs in the body. And Swasapreksha helps in regular breathing and increases the efficiency of mind. Efficiency of mind means efficiency of thinking. And Sharira Preksha, the perception of the body, the sparsha, the touch, it sharpens the mind by the act of observing and accounting our hearing powers. And Chaitanya Kendra Preksha, the perception of physical centers in the body. As you know, the brain is endowed with so many centers. I will come to it later on. And Chaitanya Preksha also plays an important role in endocrine system. Our body is surrounded by many electromagnetic waves with specific zones introduced and influenced by it. Once we concentrate on these parts of the body, we can overcome our anger, fear, and endless worries in life. For example, when you try to meditate through the navel part of the body, you feel that the adrenal glands become activated. When you meditate through the navel part of the body, the adrenal glands get activated. That's very, very important. And effects of Preksha Dhyana. Preksha Dhyana helps to maintain a balance between activity and then rest. Rest is relaxation. And Preksha Dhyana helps power create enthusiasm, and it purifies mind, it increases level of tolerance or endurance, and brings about peace of mind, and it changes mental attitudes, prevents, cures and psychosomatic many diseases, aids effortless concentration, and it frees Preksha Dhyana, frees from all our nervous and emotional tensions. Posture. What is posture? Posture, it is an important feature of Preksha Dhyana. Types of posture. This we see when we look at the image of our Tirthankaras. Please see here. Padmasana or Kamalasana, lotus posture. Where best suited for meditation, reciting mantras and regulating respiration. And Padmasana, it's only variety of Padmasana and is clinically meant for health improvement of making body strong. And Ardha Padmasana, Paryankasana, that off lotus posture, Sukhasana, simple posture, and later on Mudra, position of hands. Meditation, as already being told, is the art of living. And meditation helps to control emotional area of brain. And it is an excellent expression, that is dhyana. And meditation helps us to refrain from useless talk and thoughts of inviable things. And Dravya Sangrasa by Neminatha Siddhanta Chakravarti explained all this later on. What are the major benefits of meditation? Why we should meditate? Meditation is being preferred by diet. We should have limited consume food, and that will help our self-control or austerity, and it controls our speech and language and quality and discipline of tongue, meditation, and it reduces intensity of feelings. The feelings include anger, pride, fear, hate, greed and complexes. And meditation helps to learn exactly the origin of feelings in our body and brain, and also it causes a notable decrease in the feeling of sorrow and satisfaction, and the brain cells become activated when you meditate, and it creates awareness of thinking, and it balances the emotions. Samyama, Uttama Samyama we say in Dashalakshana Parvas. What is Samyama? Samyama means self-control, self-restraint, and that is an internal yoga, and it stabilizes the vary of mind in its thinking and creating abilities. And remember, as already being told, we follow Panchanu-ratas. We insist on following Panchanu-ratas as a put here, Ahimsa, that is non-violence, Satya, truthfulness, Asteya, non-stealing, Aparigraha, non-possessiveness, and Brahmacharya. And we should forbid consuming some of the materials like wine and body, and especially the non-vegetarian food. Yoga has already been told by our previous speaker, just I am trying to avoid it. And lastly, I will conclude with our
Namokara mantra. Why should every day pronounce Namakara mantra? Om Namo Arantanam, Namo Siddhanam, Namo Airyanam, Namo Vajjayanam, Namo Levasavasavanam. Please try to know the significance of this Pancha Namaskara. That is to say, Namokara mantra, it gives a stability of mind while uttering Namokara, and it helps to overcome mental tension and respiratory distress, asthma, epilepsy, cold and cough. And Namokara mantra should be uttered at the time of awakening in the morning and before sunrise, and also before going to sleep. And Shravakas indulge in dhyanas by pronouncing Namokara mantras. When you say Om Namo Arantanam, it is mainly for mentally ill patients. They come out of it when they say Om Namo Arantanam. Om Namo Siddhanam, that helps to overcome anger, hostility, jealousness, self-ego, arrogance, and also acidity and hypertension, anemia. When you say Namo Airyanam, it helps to overcome adamantness, liver-related diseases, jaundice, diabetes, and digestive diseases. When you say Namo Vajjayanam, it means to say to overcome backache, urinary diseases, and also it controls severe abdominal pain and neurological disease. Lastly, when you say Namo Loya Savasavunam, it overcome hazards of emotions and insomnia, and to relieve pain during puerperium and during delivery of the baby or the child. Finally, I should say, Jainism is a scientific religion related to health and care, a sound mind in a sound body, and we should follow that. Life health is prosperous through Jaina way of life. Thank you very much. Dr. H.A. Parshvanath, to show that what Jainism has, what we can achieve by Jainism, और इसी बात को लेकर मैं एक ही स्लाइड आपके बताना चाहता हूं, जिसका मैंने प्रेजेंटेशन सूरत और अहमदाबाद में किया था, और वो बात थी अपनों से अपनी बात। यानी हम अपनों से अपनी बात करते वक्त कुछ बातें अपने आप भूल चुके हैं, और इसलिए जैनिज्म किस मोड़ पर अपने को साथ दे सकता है, ये बात आप एक ही 4 लाइनों के माध्यम से मैं आपके सामने रख रहा हूं। इसके बाद की जो स्लाइड है नेक्स्ट, हाँ ठीक है। देखो, खुद को खुद संवर कर देखो, अक्स यानी अंतरात्मा को अपना निहार कर देखो। अपनी जैन संस्कृति में बहुत दम है, खुद को खुद ही पुकार कर देखो, खुद को खुद पुकार कर ही देखो। तो इस पुकार में जो है बहुत सारी बातें मैंने यहाँ रखी है, जिसमें जो है, तो जैसा मैं ये भगवान महावीर की प्रतिमा आप आपके आंखों के सामने लीजिए और देखिए कि भगवान महावीर जो थे ये स्वयं महावीर थे। और देखिए भगवान महावीर का रूप जो है, तो ये जायंट्स बोल के एक ऑर्गेनाइजेशन चला रही है जिसका नाम है महावीर। दूसरा है भगवान महावीर का चिन्ह है लॉयंस बोल के एक संस्था चल रही है। यानी भगवान महावीर को देखो कैसा बांट दिया है हम लोगों ने। ये भगवान महावीर के मूल रूप है, और उसका जो भामंडल है पीछे जो रोटरी बोलते हैं, तो ये तीनों संस्थाएं भगवान महावीर के नाम से रहना चाहिए थे। लेकिन हम क्या करें, भगवान महावीर को बांटते जा रहे हैं। क्यों बांट रहे हम? ये सिर्फ इतनी बात रखकर मैं अब अपने अगले वक्ता को बुला रहा हूं, और वो है हमारे अपने डॉक्टर अनिल जैन, जो जैन जैन्स डॉक्टर एसोसिएशन के प्रमुख स्तंभ डॉक्टर सन्मति जी ठोले, डॉक्टर प्रकाश जी मोदी एवं अपने अपने क्षेत्र के अंदर अनुभव तज्ञ विभिन्न देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए चिकित्सकों, आज मैं आपके सामने एक चिकित्सा पद्धति के संदर्भ में बात करने जा रहा हूं। विश्व की सबसे प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति, और मैं तो कहूंगा चिकित्सा पद्धति नहीं, जीवन पद्धति, उसके बारे में आपके सामने बात रखने जा रहा हूं।
जिसके अंदर बताया गया है भारतीय जीवन पद्धति, एक्यूप्रेशर, रिफ्लेक्सोलॉजी, ये सब चीजों के पीछे अगर कुछ है तो वह है भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति जहां पांव में पायल, हाथ में कंगन, हो माथे पे बिंदिया, अर्थात ये देश, जिस देश की संस्कृति के अंदर विभिन्न प्रकार के आभूषण पहनने की प्रथा है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जिन जिन स्थानों पर हम आभूषण पहनते हैं वहां पर हमारे कुछ दाब बिंदु रहे हुए हैं, और वो दाब बिंदु दबते रहते थे और हम निरोगी रहते थे। पहले हम सारे कार्य हाथों से करते थे, हाथ के अंदर सारे प्रतिबिंब केंद्र आए हुए हैं, वो दब जाते थे और हम निरोगी रहते थे। पैरों से हम खुले पैर चलते थे, हमारे पैरों के अंदर जो प्रतिबिंब केंद्र आए हुए हैं वो दब जाते थे और हम निरोगी रहते थे। और आज से हजारों साल पहले ये भारत की संस्कृति के अंदर भले ही उस चिकित्सा पद्धति का नाम आज विलुप्त हो चुका है, उसके विधि विधान विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन यह सच है कि आज भी हमारे बड़े बुजुर्ग यानी कि दिन भर की अगर थकान हो जाती है तो क्या करते हैं, पैरों को दबाते हैं और रिलैक्स हो जाते हैं, तनाव मुक्त हो जाते हैं। तो वही बात आज नवीन विज्ञान के साथ आपके सामने रखने जा रहा हूं। उसके भी अलग अलग विभाग हो गए। आज एक्यूपंक्चर विश्व के अंदर चाइनीज पद्धति के रूप में जाना जाता है, लेकिन यह मूलभूत रूप से भारतीय एक पद्धति थी। उसके बाद में उसका एक विभाग किया गया है एक्यूप्रेशर। एक्यूप्रेशर के अंदर भी बहुत सारे विभाग हैं, जो एक शियासु थेरेपी है जो जापान के अंदर काफी लोकप्रिय है, और उस थेरेपी के अंदर सारे शरीर के जितने भी प्रतिबिंब केंद्र होते हैं उन केंद्रों के ऊपर पूरे बॉडी का वेट दिया जाता है। कोई कूनी से दबाते हैं, कोई एल्बो से दबाते हैं, तो उस पद्धति को एक्यूप्रेशर शियासु पद्धति कहते हैं। साथ में एक्यूप्रेशर के अंदर मेरिडियन थेरेपी है। अपने शरीर के अंदर 14 मेरिडियंस के अंदर जो अपने एनर्जी का प्रवाह बहता है, अगर उसके अंदर कई एनर्जी कम हो जाती है और ज्यादा हो जाती है तो उसको बैलेंसिंग करने का काम इस चिकित्सा का पद्धति के माध्यम से किया जाता है। और एक्यूप्रेशर के अंदर आता है एक सुजोग थेरेपी आती है। सुजोग थेरेपी के अंदर भी यहां पर बताया गया है कि 2 पैरों की स्थिति 2 उंगलियों के अंदर रही हुई है और 2 हाथों की स्थिति दोनों उंगलियों के अंदर रही हुई है, और बीच में ये हमारा मस्तिष्क रहा हुआ है। इस प्रकार इस पद्धति के अंदर एक्यूपंक्चर भी है, और अगर नीडल के माध्यम से इलाज किया जाता है तो सुजोग एक्यूपंक्चर कहलाता है, अगर दबाव देकर किया जाता है तो सुजोग एक्यूप्रेशर कहलाता है। उसके बाद में आता है रिफ्लेक्सोलॉजी। रिफ्लेक्स का मतलब होता है प्रतिबिंब केंद्र। जैसा कि बताया है कि अपने शरीर के अंदर जो चेहरे के ऊपर प्रतिबिंब केंद्र रहे हुए हैं उनको दबाकर इलाज करने की पद्धति को रिफ्लेक्सोलॉजी यानी कि फेस रिफ्लेक्सोलॉजी कहते हैं। उसके बाद आता है हैंड रिफ्लेक्सोलॉजी। अगर हाथ के अंदर अपने शरीर के जितने भी प्रतिबिंब केंद्र रहे हुए हैं उनको दबा देकर इलाज करने की पद्धति को हैंड रिफ्लेक्सोलॉजी कहते हैं। उसके बाद आता है फुट रिफ्लेक्सोलॉजी। आज फुट रिफ्लेक्सोलॉजी के अंदर भी पांव में रहे हुए जो प्रतिबिंब केंद्र हैं उनको दबाव देकर इलाज करने की जो पद्धति है वो फुट रिफ्लेक्सोलॉजी कहलाती है। साथ ही आता है ईयर रिफ्लेक्सोलॉजी। हमारे जो गर्भ के अंदर जो जन्म के समय स्थिति होती है वह होती है कान के समान रही हुई है, तो कान के अंदर भी हमारे सभी प्रतिबिंब केंद्र रहे हुए हैं, उनको दबाव देकर इलाज करने की पद्धति को ईयर रिफ्लेक्सोलॉजी कहते हैं। अब बात करेंगे हम जैन रिफ्लेक्सोलॉजी की, जिसके बारे में मैं आपके सामने बात रखने चाहता हूं। तो ये जैन रिफ्लेक्सोलॉजी क्या है वो उसके आगे बता रहा हूं मैं। तो इसके अंदर जैन रिफ्लेक्सोलॉजी हैंड, हाथ में रहे हुए प्रतिबिंब केंद्रों को दबाव देकर इलाज करने की पद्धति को जैन रिफ्लेक्सोलॉजी कहते हैं। और उसके बाद में फुट रिफ्लेक्सोलॉजी, जैन। अब रिफ्लेक्सोलॉजी एक्यूप्रेशर एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसमें हाथ व पांव में स्थित शरीर के अवयवों को प्रतिबिंब केंद्र को दबाव देकर इलाज किया जाता है। अब आपके दिमाग में सवाल हो जाता है भाई रिफ्लेक्सोलॉजी है तो ये जैन रिफ्लेक्सोलॉजी क्या चीज है। तो उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि विश्व में बिना औषधि इलाज करने वाली चिकित्सा पद्धतियां जो भी रही हुई है उन सब में सबसे ज्यादा प्रभावशाली अगर कोई चिकित्सा पद्धति है तो वह रिफ्लेक्सोलॉजी एक्यूप्रेशर है, और उसी चिकित्सा पद्धति का विकसित रूप है जैन रिफ्लेक्सोलॉजी। अब मैं बात करना चाहूंगा कि आप जैन रिफ्लेक्सोलॉजी और अन्य पद्धतियों में क्या डिफरेंस है, क्या दोनों में क्या अंतर रहा हुआ है। तो सबसे पहली बात मूलभूत रूप से अंतर रहा हुआ है वो है उसके जो दाब बिंदु रहे हुए हैं। आप विश्व के मतलब इंटरनेट के ऊपर आप सर्च करेंगे रिफ्लेक्सोलॉजी का चार्ट, फूड चार्ट आप देखेंगे तो जो पहले आपको चार्ट बताए गए थे जिसके अंदर हार्ट दिखाया गया है, जिसके अंदर लिवर दिखाया गया है, जिसके अंदर आंखें दिखाई गई थी अभी, तो वो वाले जो चार्ट आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन हमने पिछले 22 सालों के अंदर इसके ऊपर अनुसंधानात्मक कार्य किया है, और अनुसंधानात्मक काम करने के बाद में उसके अंदर जो पॉइंट की सिचुएशन है 19,000 लोगों पर एक्यूरेट पॉइंट करने के बाद में हमने उस चार्ट का निर्माण किया है, जिसके माध्यम से वो जो पॉइंट की स्थिति है बहुत एक्यूरेट रही हुई है। जबकि आप एक शहर में
50 लोग अगर एक्यूप्रेशर करते हैं तो आप देखेंगे कि 50 ही लोग अलग अलग आप तरह से इलाज करते हैं, उसमें एक रूपता नहीं है। लेकिन हमारे इस पद्धति के अंदर, इस थेरेपी के अंदर, भारत के किसी भी क्षेत्र के अंदर अगर इस थेरेपी से इलाज कर रहा है तो उसके अंदर एक रूपता रही हुई है। रोग निदान यानी कि 80% सही, यानी कि आपके शरीर में क्या बीमारी है उसका पता लगाने में सक्षम है, तो जिसके बारे में आगे बताना वाला हूं। और अन्य थेरेपी के अंदर बीमारी का पता नहीं लगता है। साथ में इलाज और परिणाम, निश्चित ही इस चिकित्सा पद्धति के माध्यम से हम बहुत ही फास्ट रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं और अन्य के अंदर असमंजस की स्थिति रहती है। प्रशिक्षण बहुत ही आसान है और दूसरी अन्य थेरेपी के अंदर क्योंकि पॉइंट की सिचुएशन एक्यूरेट नहीं होने से उसमें समय लगता है। चुंबकों का प्रयोग, दिस इज अ फर्स्ट टाइम इन वर्ल्ड, विश्व के अंदर पहली बार जो हमारे शरीर में प्रतिबिंब के अंदर रहे हुए हैं उनको दबाव देकर इलाज तो बहुत जगह किया जाता है, लेकिन फर्स्ट टाइम उस स्थान के ऊपर सूक्ष्म चुंबकों का प्रयोग किया जाता है और उसके माध्यम से जो परिणाम हमें 3-7 दिन में मालूम होते थे वो 3 दिन के अंदर मालूम पड़ रहे हैं। तो इस प्रकार से यह चिकित्सा पद्धति रही हुई है। इसकी विशेषताओं के बारे में बात करना चाहूंगा। यह है अहिंसक चिकित्सा पद्धति। जैसा कि कहा गया है कि अगर आप किसी को दुखी नहीं करोगे तो आपको कोई दुखी नहीं करेगा, तो यह एक अहिंसक चिकित्सा पद्धति है। और जब यह अहिंसक चिकित्सा पद्धति तो है तो विश्व का सबसे बड़ा दर्शन जैन